Good evening, students. This was the last topic which I posted on Moodles yesterday, groupthink. In order to avoid groupthink, that is all, when people come together, they form opinions together. So in order to avoid this kind of scenario, which is called as groupthink, nominal group and Delphi technique were used, which we have done previously on the other slides. Delphi and nominal group technique. So in order to avoid group thinking, because it is very psychologically common thing is, students, you see, 5-6 जने इकट्ठा होंगे तो सब में एक से एक ही सोच हो जाएगी इमीडिएटली. तो उससे क्या है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, कोई नोवेल आइडियाज, कोई नए आइडियाज उभर के नहीं आएंगे, सब एक साथ सहमति दिखा देंगे, तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा. सो इस चीज को, ग्रुप थिंक को अवॉइड करने के लिए ये जो टेक्निक्स हैं, डेल्फी टेक्निक और नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जो मैंने एक्सप्लेन किया है लेक्चर 18 में, जो मैंने मॉडल में डाला है, उसमें इसको एक्सप्लेन किया है. सो गो थ्रू इट. और साथ ही साथ सो ग्रुप थिंक समझ गए. अच्छा स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, माय इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, जो मैंने केस स्टडी आप लोगों को भेजी है वो भी वहां पे है मॉडल में. गो थ्रू इट. कल अगर हो सका तो हम लाइव सेशन करके उस पर डिस्कशन करेंगे, बट अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आओगे तो वो नहीं हो पाएगा. ओके, नाउ अनदर मेथड ऑफ दिस forecasting is management judgment. So managers and executives are asked based on their experience and knowledge to develop forecast. It is very much natural that managers, they have number of years of experience so far human resources are concerned. So based on their experience, they may estimate that in the forthcoming time or forthcoming future, 6 months, 1 year down the line, what would be the requirement of the manpower requirement like, right? So forecast, however they are based on budgets, can a top level overall estimate or a bottom up aggregation of multiple department estimate. Now forecast like budgets are future estimation of the financial things. So it can be forecasted for a let's say 1 year. There is a budget coming up for the company for 1 year. So now if we have to forecast the requirement of the manpower, then it should be adjusted within the budget. We cannot go beyond the budget. So budget is one of the criteria of decision making. अगर बजट में लिखा है कि अगले 1 साल में we are going to invest 20 lakh on manpower as salaries or incentives, तो हम उसको ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते. तो दिस विल इफेक्ट आवर डिसीजन मेकिंग ऑफ व्हाट, ऑफ मैन पावर फोरकास्टिंग, क्योंकि उससे ज्यादा हम प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बजट में दिया हुआ है कि अवेलेबल फंड्स इतने हैं, तो हम उससे ज्यादा मान लो हायर करना चाहे लोगों को, हम नहीं कर सकते. दिस इज द लॉजिक. सो इट कैन बी अ टॉप लेवल ओवरऑल एस्टिमेट और अ बॉटम अप एग्रीगेट ऑफ मल्टीपल डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स. यानी कि जो दूसरा बॉटम अप है, इसमें व्हाट हैपेंस बच्चों के ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, marketing department, all department, they gave up their own estimates. They all gave up all their own estimates or future requirement of manpower. So which helps in managerial judgment. क्योंकि सब डिपार्टमेंट अपना फीडबैक देते हैं कि आने वाले 6 महीने में क्या नए लोगों की जरूरत है, नहीं है, लोगों को निकाला जाना है. ये हर डिपार्टमेंट हेड टॉप मैनेजमेंट को भेजता है. So naturally, this helps them in making judgment, accurate judgment or forecasting for the future requirement of manpower. Forecasting में managerial judgment इस तरह से work करता है. Then top level forecast provide a gross indicator of needed employment level, but do not indicate where those employment should be allocated in the organization. Top level एक overall scenario तो बनाता है कि भाई इतने इतने लोगों की जरूरत है, बट अगर दूसरे पॉइंट में जैसे हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने अपना बॉटम अप फीडबैक दे रखा है, तब तो ठीक है, तब तो हमें पता है कि भाई फाइनेंस डिपार्टमेंट में 3 जनों की जरूरत है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 10 जनों की जरूरत है, एंड वी कैन फिगर आउट व्हाट इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन लाइक. बट अदरवाइज जो टॉप मैनेजमेंट होता है, अगर उनको ये सेग्रीगेटेड जानकारी ना दी जाए तो वो एक प्रेडिक्शन जनरली कर सकते हैं कि भाई फंड्स हमारे पास इतने हैं, आने वाले फ्यूचर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दैट दे कैन बेस देयर जजमेंट ऑफ फोरकास्टिंग मैन पावर.
बॉटम अप फोरकास्टिंग प्रोवाइडेड बाय मैनेजर्स इन, जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया था, प्रोवाइडेड बाय मैनेजर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ बेटर आइडिया। टॉप डाउन से ज्यादा बॉटम अप फोरकास्ट है मैनेजरियल जजमेंट में। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट हेड बहुत अच्छी तरह जज कर सकता है कि उसके डिपार्टमेंट की नीड आने वाले समय में क्या होने वाली, और वो अगर ये फीडबैक टॉप मैनेजमेंट को देगा तो टॉप मैनेजमेंट अच्छी तरह से सारे ओवरऑल दे कैन वर्क आउट अ ओवरऑल सिनेरियो फॉर द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। सो द बॉटम अप फोरकास्ट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजर्स इन वेरियस डिपार्टमेंट प्रोवाइड अ बेटर आइडिया ऑफ एलोकेशन ऑफ वर्कफोर्स एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज दैट आर नीडेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। अरे भाई, एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयज होता है, वो चाहे एक क्लर्क हो, चाहे एक मैनेजर हो, चाहे एक इंजीनियर हो। सो टाइप ऑफ एम्प्लॉयज भी एक्यूरेटली कौन बता सकता है? जो कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं, वो मैनेजर्स होते हैं, वो फीडबैक देंगे। सो दिस इज हाउ द मैनेजरियल जजमेंट हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द मैन पावर फोरकास्टिंग इन टाइम्स टू कम। However, bottom-up forecasts tend to be overestimate workforce need as each manager tries to increase the staff. Obviously, हर आदमी अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, डिपार्टमेंट हेड, तो नेचुरली वो सोचेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर कर लें जिससे कि हमारा काम अच्छी तरह से हो। हालांकि ये हर जगह जरूरी नहीं है, बट फिर भी इट्स अ काइंड ऑफ थिंकिंग विच द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स डू हैव। सो दिस कैन ऑल्सो इंटरफेयर विद द एस्टिमेशन, क्लियर एस्टिमेशन ऑफ द फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर, राइट? So these were the, then next is a statistical forecast, various statistical procedures, तरह तरह के स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स होते हैं, जो स्टैट आप लोगों ने पढ़ रखी है, उनको लगाया जाता है। रिग्रेशन एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू डेवलप फोरकास्ट बेस्ड ऑन सिनेरियो और थियोराइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, कि भाई आने वाले समय में जैसे एक वेरिएबल ले लिया इकोनॉमिक कंडीशन, न्यू प्रोडक्ट, इस तरह के कई वेरिएबल्स ले लिए, और बेस्ड ऑन दैट डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ले लिया रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। तो ये रिलेशनशिप स्टैटिस्टिकली वर्कआउट किया जा सकता है अंडर ए स्टैटिस्टिकल फोरकास्ट, और हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं कि इन फैक्टर्स के बेसिस पे दिस वुड बी द प्रोबेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन पावर। सो बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिस कैन बी प्रेडिक्टेड। Then we have the computer modeling. Many organizations use sophisticated forecasting software. Forecasting के अब सॉफ्टवेयर बन गए हैं बच्चों, जिसमें डेटा आप डालोगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, और वो आपको एक एस्टिमेट दे देगा कि भाई अगले इन कंडीशंस में आपके प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से, आपकी कंपनी की फंक्शनिंग के हिसाब से, आपके एरिया ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से सारा डेटा इनपुट कर दिया जैसे एक सॉफ्टवेयर में होता है, और वो आपको तुरंत एक रिजल्ट दे देगा। बट ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा, ये बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाए। इट शुड बी मेड बाय रियल एक्सपर्ट पीपल, देन ओनली इट कैन गिव अ गुड फोरकास्टिंग। सो दिस परमिट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू इवैल्यूएट वर्कफोर्स नीड अंडर वेरियस सिनेरियोज। अलग अलग सिनेरियोज में, अलग अलग कंडीशन में, जैसे कंप्यूटर में बहुत तरह के ऑप्शंस होते हैं सॉफ्टवेयर में, उन ऑप्शंस को वर्कआउट करते हुए, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तब क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तब क्या होगा, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है तब क्या होगा, नए टेक्नोलॉजी को लाना महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज। कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, मोडालिटीज वी कैन वर्कआउट अंडर अ कंप्यूटर मॉडलिंग सिस्टम, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज भी करती है। ठीक है, सो ये एक लास्ट मेथड था एक तरह से फोरकास्टिंग का। और जो लास्ट में जो हम देखेंगे बच्चों, वो होगा मल्टीपल मेथड्स, यानी कि जजमेंट भी लगा लिया, कंप्यूटर मॉडलिंग भी कर लिया, डेल्फी मेथड भी लिया। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल मेथड्स भी लगाए जा सकते हैं, और सबको कोराबोरेट किया जा सकता है, यानी कि एडजस्ट करके एक दूसरे से कंपेयर करके देखा जा सकता है कि विच ऑफ द मेथड्स आउट ऑफ दीज मल्टीपल मेथड्स बीन अप्लाइड फॉर एस्टिमेशन एंड फोरकास्टिंग ऑन मैन पावर इज वर्किंग बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो मल्टीपल मेथड में, एज द नेम सजेस्ट, मल्टीपल मेथड्स आर अप्लाइड and the organization tries to arrive at a single forecasting for the organization. So in the final analysis, no single forecasting method is likely to be accurate every time, obviously, because of various changing conditions. Therefore, most organizations use multiple methods to develop different forecast. और उन सबको कंपेयर करके देखते हैं कि भाई एस्टिमेशन में कौन सा मिला जुला जो मॉडल निकलेगा वो अच्छा साबित होगा। Ultimately, it is likely to be a top-level manager using institution based on accumulated knowledge and years of experience that makes the final determination of the most likely
फोरकास्ट। सो बॉटम लाइन ये है कि इतने सारे मेथड्स को हमने अप्लाई किया, बट लास्ट में मैनेजर और जो टॉप मैनेजमेंट का जो एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको वो एक मेंस दिशा देता है टुवर्ड्स एस्टिमेशन और फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर in any organization. So we will end here, and next topic will be succession planning.